Good morning, students. So today we will start chapter 1 from NCERT book of class 9th, that is the fun they had. So बच्चों आपको पहला चैप्टर ही जो है that is the fun they had. अच्छा, I just want to ask you a few questions. Do you want to give me the answer? ठीक है, you will. So बच्चों, what do you think? What kind of a school we will have in our future? Because basically in this story, the story takes us to the word of future. Our future schools, how they will be. कैसे होंगे हमारे future schools, है ना? Maybe your children will go there, and so just think about it. What kind of school you want in future? सो बच्चों, वॉट एवर यू आर थिंकिंग, आप जैसा भी सोचते हो, डो नॉट फॉरगेट टू राइट इन दी कमेंट सेक्शन. अगर आपको लगता हो कि फ्यूचर्स के जो भी स्कूल होंगे हमारे वो रोबोटिक होंगे, वहाँ पे रोबोट्स पढ़ाएंगे, टीचर्स नहीं होंगे, या वो वर्चुअल क्लासरूम्स होंगे, वॉट एवर कुछ भी आपके दिमाग में आता है ना, जस्ट राइट इट एंड गिव मी द आंसर इन दी कमेंट सेक्शन. So let's start reading and try to understand the chapter. The fun they had. Before you read, the story we shall read is set in future when books and schools as we now know them will perhaps not exist. How will children study then? The diagram below may give you some idea. So बच्चों, बेसिकली जो चीज़ मैंने आपसे पूछी, they are asking you the same thing. So आप सोचो and then reply me. In pair, discuss 3 things that you like best school and 3 things about your school that you would like to change. Write them down. Have you ever read words on television or a computer screen? Can you imagine a time when all books will be on computer and there will be no book printed on paper? Would you like such books better? So बच्चों, आजकल as you can see कि अभी कोरोना में तुम लोगों ने देखा, your क्लासेस बेसिकली अब शिफ्ट हो गई किस में, ऑनलाइन क्लासेस में. अब नाउ यू आर टेकिंग ऑनलाइन क्लासेस, आप लोग अपने घर से पढ़ रहे हो. तो मे भी कभी फ्यूचर में ऐसा टाइम भी आएगा व्हेन आपको टीचर्स नहीं पढ़ाएंगे, आपको रोबोट्स पढ़ाएंगे, एंड देयर विल बी अ वर्चुअल क्लासरूम. पूरा वर्चुअल क्लासरूम होगा, आपके पास कोई बुक्स नहीं होंगे, कोई नोटबुक नहीं होगी, आपके पास कोई चीज़ प्रिंटेड नहीं होगी, सब कुछ आपको कंप्यूटर पे ऑनलाइन मिलेगा. कैन यू इमेजिन दैट टाइम? Margie even wrote about it that night in her diary on the page headed 17th May 2157. She wrote, "Today Tommy found a real book. It was a very old book. Margie's grandfather once said that when he was a little boy, his grandfather told him that there was a time when all stories were printed on paper. They turned the pages, which were yellow and cranky, and it was awfully funny to read words that stood still instead of moving the way they were supposed to on a screen, you know. And then when they turned back to the page before, it had the same words on it that it had when they read it the word the first time." Geese said, "Tommy, what a waste. When you are through with the book, you just throw it away. I guess a television screen must have a million books on it, and it's good for plenty more. I would not throw it away." "Same with mine," said Margia. She was 11 and had not seen as many telebooks as Tommy had. He was 13. She said, "Where did you find it?" "In my house." He pointed without looking because he was busy reading. "In the attic. What is about?" So बच्चों, बेसिकली ये स्टोरी जब बिगिन होती है, आज आप देख रहे हो आज क्या चल रहा है, 2000 एंड कौन सी ईयर चल रहा है, 2021. वेरी गुड. और ये स्टोरी जो है वो कब के प्लॉट आपने देखा, 2157. इट मीन्स ये फ्यूचर की स्टोरी है, जो कि कुछ 2 बच्चे होते हैं, बेसिकली ये ब्रदर और सिस्टर होते हैं. 2 कैरेक्टर्स आपने देखे यहाँ पे. पहला है टॉमी जो कि 13 ईयर ओल्ड है, और उसकी सिस्टर होती है, शी इज़ 11 ईयर ओल्ड, और वो 11 साल की होती है, मार्गी. और ये लोग जो है ना फ्यूचर में हैं,
आज का जैसा नहीं है। जैसे आज आपको टीचर्स पढ़ाते हैं, आपसे वो बात करते हैं, आपको समझाते हैं, फिर आपसे क्वेश्चंस भी पूछते हैं और आपको होमवर्क भी देते हैं। बट ये जो फ्यूचर में है, वहाँ पे क्या है, वहाँ पे कोई भी ह्यूमन टीचर नहीं है, कोई ह्यूमन टीचर नहीं पढ़ाता है। वहाँ पे क्या है, सिर्फ रोबोटिक टीचर्स हैं। जैसा आपने अभी देखा कि उसमें वर्चुअल क्लासरूम्स हैं, रोबोटिक टीचर्स हैं, रोबोट्स पढ़ाते हैं। वहाँ पे एक रूम होता है, बच्चे जाके वहाँ पे बैठ जाते हैं और वो रोबोट उन्हें वो पढ़ाते हैं। पढ़ाने के बाद वो तुरंत उनका टेस्ट भी लेते हैं और विद इन अ सेकेंड उन्हें रिप्लाई भी कर देते हैं, उनका जैसा भी टेस्ट रिज़ल्ट होता है। सो ये टोटली डिफरेंट सिचुएशन है यहाँ पे। अच्छा, तो अभी क्या होता है, हमारी स्टोरी में एक टर्न आता है। टॉमी को एक रियल बुक मिल जाती है। फिर पता है टॉमी क्या सोचता है, इज थिंकिंग कि ये तो टोटली वेस्ट है, इट वॉज टोटली वेस्ट टू हैव अ बुक, अ प्रिंटेड बुक ऑन अ पेपर, बिकॉज वंस वी रीड द बुक इज़ वेस्ट। उसको लगता है कि एक बार हम बुक पढ़ लेते हैं तो बुक तो वेस्ट हो जाती है, तो वो बेकार है। इससे अच्छा तो मेरा मैं जो ई टेक्स्ट पढ़ता हूँ उसमें इतना अच्छा मटेरियल है कि सब कुछ उसमें क्या होता है, एक बार पढ़ लो, चाहे जितनी बार मन चाहे उतनी बार पढ़ लो, और उसको बार बार आप रिपीट भी कर सकते हो और उसमें बहुत सारी बुक्स आप देख सकते हो। टॉमी फाइंड्स अ रियल बुक, ओल्ड बुक फ्रॉम दी एटिक। उसकी अलमेरा में से, जो आपने एटिक मीन्स क्या होता है, एक जैसे सपोज आपके घर में आपने देखा होगा छत के जस्ट नीचे एक अलमारी टाइप की होती है ना, उसी को बोलते हैं एटिक। तो वहाँ से उसे एक ओल्ड बुक मिल जाती है जो कि प्रिंटेड होती है। इन बच्चों ने कभी भी प्रिंटेड बुक्स नहीं देखी होती क्योंकि उनके टाइम पे प्रिंटेड कुछ भी नहीं होता है, और टॉमी को वो बुक मिलती है। तो फिर टॉमी बताता है कि ये बुक जो है वो हमारे ग्रैंडफादर के भी ग्रैंडफादर की है, और ये सारी बुक जो है ना वो कैसी है, प्रिंटेड है, जबकि आजकल ऐसा नहीं होता है। वो मार्गी को बताता है कि उसे एक बुक मिली है जो कि थोड़ी सी, क्योंकि बहुत पुरानी है इस वजह से वो येलोइश, उसके पेपर्स जो हैं वो बिल्कुल येलोइश हो गए हैं और वो थोड़ी सी मुड़ी हुई भी है, पुरानी सी है, और जो कि हमें यहाँ घर पे मुझे मिली है। अब वो बताता है कि वो जो बुक है उसमें वो जो लेटर्स हैं वो अपनी जगह पर ही हैं, वो हिसकते नहीं हैं, क्योंकि नॉर्मली वो लोग वर्चुअल बुक्स पढ़ते हैं, ई बुक्स पढ़ते हैं, ई टेक्स्ट पढ़ते हैं, उसमें क्या है आराम से कोई भी लेटर उनका मूव करते रहते हैं। बट ये जो बुक वो देख रहा है जो कि प्रिंटेड है, उसमें कुछ भी स्टेबल, सब कुछ स्टेबल है, कुछ भी मूव नहीं कर रहा है। तो टॉमी बताता है कि ये जो प्रिंटेड बुक है वो बिल्कुल डिफरेंट है उनकी ई बुक से। मम्मी को क्या लगता है कि जो उसके जो टीवी स्क्रीन पे जो आता है, जो दिखता है, बहुत सारी उसमें बुक्स देख सकता है वो ज़्यादा अच्छी हैं इन कंपैरिजन ऑफ दीज प्रिंटेड बुक्स, ऐसा टॉमी सोचता है। अच्छा, अभी जो मार्जिया होती है वो भी ये जान करके बहुत सरप्राइज़ होती है कि कोई बुक है और जिसमें जो है ना स्कूल के बारे में लिखा हुआ है, लेकिन जब वो सुनती है कि इस बुक में स्कूल के बारे में लिखा हुआ है तो वो सोचती है इट्स वर्थलेस, मतलब ऐसा कोई क्यों लिखेगा, बुक के स्कूल के बारे में क्यों कोई लिखेगा। मार्गी ऐसा सोचती है। ऐसा क्यों सोचती है, बिकॉज वो जो है ना वो अपने स्कूल को लाइक नहीं करती, शी डजेंट लाइक हर स्कूल। क्योंकि स्कूल को क्यों नहीं लाइक करती है, वो उसे लगता है इट्स वेरी बोरिंग कि जा करके बैठ जाओ, और वो एक तो उसका क्या है आजकल ज्योग्राफी में जो उसके टेस्ट हो रहे हैं उसमें वो अच्छा परफॉर्म नहीं कर पा रही है, इस वजह से उसे और भी ज़्यादा ये स्कूल और बुक्स वगैरह कुछ अच्छा नहीं लग रहा है। तो अभी मार्गी जो है वो बोलती है, कहती है कि जो ज्योग्राफी में जो है ना वो जो पढ़ रही है वो कुछ उसे समझ में नहीं आ रहा है। जो उसके मैकेनिकल टीचर हैं मे बी वो कुछ ख़राब हो गए हैं और मे बी इस वजह से वो समझ नहीं पा रही है लेसन्स को। तो जो मार्गी की मदर होती है उसे थोड़ी सी फ़िक्र होती है, वो सोचती पता नहीं ऐसा क्यों हो रहा है। तो फिर वो मार्गी को बोलती है ठीक है मैं देखती हूँ। वो फिर जो है ना जो कंट्री के इंस्पेक्टर होते हैं उन्हें कॉल करके बोलती है कि कुछ मैकेनिकल टीचर में कुछ प्रॉब्लम है, तो प्लीज़ आप इसको एक बार देख लीजिए। तो कंट्री इंस्पेक्टर बेसिकली बच्चों कोई आप समझ देख रहे हो ये स्टोरी फ्यूचर की है, तो यहाँ पे मैकेनिकल टीचर से मतलब क्या है, कोई ह्यूमन बीइंग नहीं है, वो एक रोबोटिक मशीन है जो कि मशीन उन लोगों को पढ़ाती है एक तरीके से। तो वो फिर इसीलिए वो कंट्री इंस्पेक्टर को कॉल करती हैं, मींस वहाँ के जो भी देखते होते हैं स्कूल को, उसको कॉल करके बोलती है कि इसमें कुछ दिक्कत आ रही है, आप इस मशीन को एक बार रीचेक कर लीजिए। फिर वो कंट्री इंस्पेक्टर आते हैं और उस मशीन को इंस्पेक्ट करते हैं, कायदे से देखते हैं, एंड देन वो बता के जाते हैं कि कोई दिक्कत नहीं है, मार्गी शी इज़ ऑलरेडी एब्सोल्युटली फाइन, उसके साथ कोई भी दिक्कत नहीं है। ये जो मशीन है वही थोड़ा ज़्यादा फास्ट फॉरवर्ड चल रही थी, उसके एक एज के अकॉर्डिंग नहीं चल रही थी, इसी वजह से वो अच्छा परफॉर्म नहीं कर पा रही थी, बट नाउ अभी वो अच्छा परफॉर्म करेगी। Margie was a scornful school. What is there to write about school? I hate school.
Margie always hated school, but now she hated it more than ever. The mechanical teacher had been giving her test after test in geography, and she had been doing worse and worse until her mother had shaken her head sorrowfully and sent for the country inspector. He found a round little man with a red face and a whole box of tools with dials and wires. He smiled at Margie and gave her an apple, then took the teacher apart. Margie had hoped he would not know how to put it together again, but he knew how all right. And after an hour or so, there it was again, large and black and ugly, with a big screen on which all lessons were shown and questions were asked. That was not so bad. The part Margie hated. तो बेसिकली बच्चों का ये स्टोरी चल रही है कि मार्गी का जो जोग्राफी में टेस्ट देती है उसके मार्क्स बहुत ख़राब आ रहे हैं और जिसकी वजह से वो बहुत परेशान है एंड शी इज़ हेटिंग हर स्कूल। वो अपने स्कूल को बिल्कुल हेट करती है, इसीलिए उसकी मदर जो है वो कंट्री इंस्पेक्टर को बुलवाती हैं और फिर वो उसके जो मैकेनिकल टीचर हैं उसको वो ठीक कर देते हैं। सो इसी तरीके से हमारी स्टोरी आगे बढ़ती है। नाउ most was the slot where she had to put homework and test papers. She always had to write them out in a punch code they made her learn when she was 6 years old, and the mechanical teacher calculated the marks in no time. The inspector had smiled after he was finished and patted Margie's head. He said to her mother, "It's not the little girl's fault, Mr. Jones. I think the geography sector was geared a little too quick. Those things happen sometimes. I have slowed it up to an average 10-year level. Actually, the overall pattern of her progress is quite satisfactory." And he patted Margie's head again. सो बच्चों बेसिकली जो कंट्री इंस्पेक्टर थे उन्होंने आ करके उसको ठीक कर दिया और उसको बोला कि बेसिकली ये मैकेनिकल टीचर में ही कुछ फॉल्ट आ गई थी जिसकी वजह से ऐसा हो रहा था, अदरवाइज़ मार्गी जो है शी इज़ गुड, वो अच्छा परफॉर्म कर रही है, सेटिस्फैक्टरी परफॉर्म कर रही है और ऐसा बोल करके वो जाते हैं। मार्गी वॉज डिसअपॉइंटेड. शी हैड बीन होपिंग दे वुड टेक द टीचर अवे altogether. They had once taken Tommy's teacher away for nearly a month because the history sector had blanked out completely. So she said to Tommy, "Why would anyone write about school?" Tommy looked at her with very superior eyes. "Because it's not a kind of school, stupid. This is the old kind of school that they had hundreds and hundreds of years ago," he added loftily, pronouncing the word carefully. "Centuries ago." बच्चों बेसिकली इन 6 पैरा जो टॉमी होता है वो बोलता है कि ये बहुत ही पहले टाइम की बात है जब एक्चुअली में स्कूल्स हुआ करते थे, बहुत 100 ईयर्स एगो पहले की बात है, ये उन स्कूलों की बात है, इसीलिए ये बुक्स में लिखा हुआ है ना। Margie was hurt. "Well, I don't know what kind of school they had all that time ago." एंड वो क्या बोलती है कि मुझे नहीं पता कि किस टाइप के वो स्कूल होते थे बहुत पहले, क्योंकि उसे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है बिकॉज शी इज़ हेटिंग द स्कूल्स। वो अपने स्कूल से इतना ज़्यादा हेट करती है, इस वजह से वो शी इज़ नॉट हैप्पी, वो कुछ सुन के खुश नहीं होती है। शी रीड द बुक ओवर हिज शोल्डर फॉर अ वाइल, देन said, "Anyway, they had a teacher." Sure, they had a teacher, but it was not a regular teacher. It was a man. A man? How could a man be a teacher? Well, he just told the boys and girls things and gave them homework and asked them questions. A man? It's not smart enough. Sure he is. My father knows as much as my teacher. He knows almost as much. I betcha. Margie was not prepared to dispute that. She said,
I would not want a strange man in my house to teach me. Tommy screamed with laughter. You don't know much, Margie. The teachers did not live in the house. They had a special building, and all the kids went there. And all the kids learned the same thing, sure, if they were the same age. But my mother says a teacher has to be adjusted to fit the mind of each boy and girl. It teaches, and that each kid has to be taught differently. Just the same, they did not do it that way then. If you don't like it, you don't have to read the book. I didn't say I didn't like it, Margie said quickly. सो बेसिकली बच्चों 7th पैरा में यहाँ पे जो टॉमी है वो बता रहा है कि उस टाइम पे स्कूल्स कैसे होते हैं। मींस आज जो हम जिन स्कूल्स में हम जाते हैं, फिजिकली एक बिल्डिंग है जो प्रॉपरली बनी हुई है कि दैट इज़ अ स्कूल, वो कैसी होती थी। और वहाँ पे एक टीचर होते थे जो कि सभी बच्चों को पढ़ाते थे। वो सभी बच्चे एक क्लास में पढ़ते थे, एक एज ग्रुप के होते थे और वो साथ में पढ़ते थे और एक ही चीज़ पढ़ते थे। जबकि आज जो फ्यूचर के टाइम पे ऐसा नहीं है। फ्यूचर के टाइम में क्या है, बिल्कुल सब चीज़ें डिफरेंट हैं। Because her mother said little girls learn better if they learned at regular hours. The screen was lit up and it said today's arithmetic lesson is on the addition of proper fractions. Please insert yesterday's homework in the proper slot. Margie did so with a sign. She was thinking about the old schools they had when her grandfather's grandfather was a little boy. All the kids from the whole neighborhood came, laughing and shouting, in the schoolyard, sitting together in the schoolroom, going home together at the end of the day. They learned the same things so they could help one another with the homework and talk about it. And teachers were people. The mechanical teacher was flashing on the screen. When we add fractions 1 upon 1 and 1 upon 4, Margie was thinking about how the kids must have loved it in the old days. She was thinking about the fun they had. सो बच्चों बेसिकली इन द लास्ट पैरा 10th पैरा में हम जैसा देखते हैं कि जो मागी होती है वो अपना रेगुलरली वर्क करने के लिए बैठती है, जैसे कि वो मैकेनिकल टीचर से अपने पढ़ रही होती है। बट उसी टाइम पे वो सोचती है कि उसके ग्रैंडफादर जब वो छोटे होंगे तब वो कितना एंजॉय करते होंगे। वो सब एक बिल्डिंग में जाते होंगे, आस पड़ोस के नेबरहुड के जितने भी बच्चे होंगे वो सब एक बिल्डिंग में साथ में जाते होंगे, वहाँ एक साथ बैठते होंगे, स्कूल यार्ड में एक साथ खेलते होंगे, एक दूसरे से वो अपने होमवर्क के बारे में बात कर सकते थे, एक दूसरे की हेल्प कर सकते थे। बट आज के टाइम में तो कुछ भी ऐसा नहीं है। तो जो मार्गी होती है ना, वो ये सोच करके खुश होती है कि उस समय के लोग कितने खुश होते होंगे एक दूसरे के साथ चीज़ें करके, कितना एंजॉय करते होंगे वो अपनी लर्निंग को। बट आज के टाइम पे ऐसा नहीं है। सो बच्चों, आई होप आपको ये स्टोरी बहुत पसंद आई होगी एंड डेफिनेटली यू कैन सी योर फ्यूचर ऑल्सो। आप इस पूरे वीडियो को बहुत ध्यान से देखिएगा, सुनिएगा और उसके बाद आप एक चीज़ डिसाइड करना, डू यू वांट कि आपके जो फ्यूचर स्कूल्स हों वो ऐसे ही हों जैसे कि आपने अपने इस चैप्टर में पढ़ा, या फिर आप आज की तरह के स्कूल्स चाहते हो। और ये चीज़ मुझे आप कमेंट सेक्शन में लिख के ज़रूर बताओगे। यू विल नॉट फॉरगेट टू राइट इन दी कमेंट सेक्शन। सो वी विल मीट इन आवर नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर, और पढ़ते रहो। Or whatever queries you are having, you can ask me in the comment section. Thank you, बच्चों।